Hello and welcome back to Short and Pro. I'm John. I hope you all are fine. Today in this video I'll provide you four dictations. जो हमारी पहली डिक्टेशन होगी वो है 314 ऑफ वर्ड्स। वो एक मिक्स्ड मेटा डिक्टेशन है, उसकी स्पीड रहेगी 60 वर्ड्स पर मिनट। वो स्टेनोटाइप्स के लिए है। जो हमारी आज की दूसरी डिक्टेशन है वो है 325 ऑफ वर्ड्स। एक जनरल मेटा डिक्टेशन है, उसकी स्पीड रहेगी 65 वर्ड्स पर मिनट। वो स्टेनोटाइप्स के लिए है। और जो आज की तीसरी डिक्टेशन है वो है 351 ऑफ वर्ड्स। वो एक लीगल मैटर डिक्टेशन है, उसकी स्पीड रहेगी 70 वर्ड्स पर मिनट। वो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए है। और जो आज की लास्ट डिक्टेशन होगी इस वीडियो की वो है 402 ऑफ वर्ड्स। वो भी एक लीगल मैटर डिक्टेशन है, तो उसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड्स पर मिनट। वो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए बनी है। साथ साथ जो आज इन डिक्टेशंस का टफ वर्डिंग होगा, आ, उनकी आउटलाइन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो में जुड़े रहिए, स्किप नहीं करना है वीडियो को। और उसके अलावा मैं आपको आज कुछ 5 ऐसे नए वर्ड्स बताऊंगा जो हमारे लीगल वर्ड्स हैं, जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सुने होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं इन डिक्टेशंस का पीडीएफ और आउटलाइंस देखना, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2-3 दिनों से एंटायर जेएंडके में इंटरनेट का इशू चल रहा है, तो उस वजह से हम आज लाइव आपको डिक्टेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए जो ये आज का वीडियो है ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आप सब तैयार हो जाइए डिक्टेशंस के लिए। जो हमारी पहली डिक्टेशन मिक्स्ड मेटा डिक्टेशन है, इसमें एक वर्ड है जिसको आप नोट डाउन करके रखेंगे। उसकी स्पेलिंग वो है मिलिटराइजेशन। उसकी स्पेलिंग रहेगी MILITARISATION, मिलिटराइजेशन। इसमें आपको ब्रिटिश इंग्लिश का इस्तेमाल कर देना है, और इसमें कुछ हाइफिनेटेड वर्ड्स हैं, उसका भी आप खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करना है। सो बी रेडी फॉर द डिक्टेशन। The dictation starts after 5 seconds. Start. The appeal presently before this court arises out of an order of conviction passed by the learned sessions judge, wherein the appellant was sentenced to rigorous imprisonment for a term of 5 years under the Prevention of Corruption Act. Stop. The counsel for the appellant has assailed the judgment on the ground that the prosecution utterly failed to discharge the evidentiary burden, as the sanction for prosecution was defective and the material witnesses turned hostile. Stop. It is further urged that the trial court overlooked settled principles of appreciation of evidence, thereby causing grave miscarriage of justice. Stop. The learned government advocate, however, contends that the conviction is well founded on documentary proof, including recovery of tainted currency notes from the appellant's possession. Stop. Having heard both sides, this court is constrained to observe that the trial court is duty bound to record reasons in support of its findings, failing which the judgment cannot withstand appellate scrutiny. Stop. Accordingly, the appeal is admitted for hearing and the execution of sentence is suspended
till the next date of here consideration. Stop. The rise of space exploration in recent decades has captured the imagination of scientists, governments, and ordinary citizens alike. Stop. From early satellite launches to ambitious plans of establishing human colonies on the Moon and Mars, the journey of mankind beyond Earth reflects both scientific achievement and human curiosity. Stop. Nations are increasingly investing in space technology, not merely for prestige but also for practical benefits such as satellite communication, weather forecasting, and disaster management. Stop. Private enterprises too have entered the arena, promising to make space travel commercially viable in the near future. Stop. However, this rapid advancement raises ethical and environmental questions, particularly concerning space debris and the potential militarization of outer space. Stop. It is therefore imperative that international cooperation is fostered, and legal frameworks are strengthened, to ensure that space remains a domain of peaceful exploration for the benefit of all humanity. Stop. End of dictation. आई होप ये डिक्टेशन आपको अच्छी लगी होगी। अब जो हमारी दूसरी डिक्टेशन है ये एक जनरल मैटर डिक्टेशन है। इसकी वर्डिंग है 325 ऑफ वर्ड्स और इसकी स्पीड में 65 वर्ड्स पर मिनट पे डिक्टेट करूंगा। ठीक है, तो आप प्लीज तैयार हो जाए इस डिक्टेशन को लिखने के लिए। इसमें आप खास ख्याल रखिएगा कैपिटलाइज्ड वर्ड्स का। ठीक है, इसमें कुछ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का इस्तेमाल हुआ है तो आप कैपिटलाइजेशन में खास ख्याल रखिएगा। Get yourself ready for the dictation. The dictation starts after 5 seconds. Start. The national capital experienced widespread disruption yesterday after heavy rainfall led to waterlogging in several parts of the city. Stop. Traffic came to a standstill on major roads, with commuters reporting long delays, stranded vehicles, and overcrowding in public transport. Stop. The municipal authorities deployed emergency teams to clear drains, pump out accumulated water, and restore normal movement, but officials admitted that inadequate infrastructure remains a recurring challenge during the monsoon season. Stop. Several residential colonies also faced prolonged power cuts, adding to public frustration. Stop. Residents have urged the administration to adopt long-term solutions rather than temporary relief measures that fail to address the root cause of urban flooding. Stop. In political developments, the opposition staggered a dramatic walkout in parliament
over the rising prices of essential commodities. Stop. Members demanded immediate government intervention to curb inflation and provide subsidies for basic food items such as rice, wheat, and cooking oil. Stop. The finance ministry responded by stating that global market fluctuations and supply chain disruptions were largely responsible, though steps were being taken to ensure stable availability in domestic markets. Stop. Analysts suggest that inflationary pressures could remain for some months, but timely policy adjustments, along with strict monitoring of hoarding and black marketing, may ease the burden on households. Stop. Elsewhere, the Ministry of Culture has launched a nationwide program to promote regional languages, folk traditions, and indigenous literature. Stop. The initiative will provide financial assistance to artists, writers, theater groups, and cultural academies, thereby encouraging preservation of heritage. Stop. Officials have stressed that safeguarding art forms is crucial to maintaining social identity in an era of rapid modernization. Stop. Meanwhile, the sports fraternity celebrated the victory of the national hockey team, which secured a historic win in the international championship. Stop. Crowds gathered at airports and public squares to welcome the players, who dedicated their triumph to the supporters. Stop. Experts have hailed the performance as a revival of the country's rich supporting legacy, calling for greater investment in training facilities, infrastructure, and grassroots development. Stop. End of dictation. आई होप आपको ये डिक्टेशन अच्छी लगी होगी। ये एक मिक्सड मेथड डिक्टेशन था। इसमें एक जगह पे मुझे मेरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअली वो है इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी है, ठीक है, INFLATIONARY। प्लीज इसको अकॉर्डिंगली आप ठीक कर देना। इस वीडियो की जो हमारी थर्ड डिक्टेशन आज की है वो है एक लीगल मेथड डिक्टेशन। ये 351 ऑफ वर्ड्स का होगा। इसकी स्पीड रहेगी 70 वर्ड्स पर मिनट। प्लीज आप अपने आप को तैयार रखिएगा इस डिक्टेशन को लिखने के लिए। गेट योरसेल्फ रेडी फॉर द डिक्टेशन। The dictation starts after 5 seconds. Start. In the constitutional framework of India, the doctrine of fundamental rights occupies a position of paramount importance. Stop. These rights guarantee the citizens protection against arbitrary actions of the state and secure the liberty of individuals in diverse spheres of life. Stop. However, the exercise of these rights is not absolute, for they are subject to reasonable restrictions imposed
in the interest of public order, morality, and security of the state. Stop. Alongside rights, the Constitution also casts certain fundamental duties upon citizens, serving as reminders that liberty must coexist with responsibility, and that the collective interest of society cannot be undermined by unbridled individualism. Stop. The judiciary relationship with the legislature and the executive, though marked by the principle of separation of powers, is not one of absolute isolation. Stop. The judiciary functions as the guardian of the constitution and acts as a check upon legislative and executive excesses. Stop. Though judicial review, it ensures that both rights and duties remain balanced within the constitutional scheme. Stop. Such a relationship fosters accountability, while maintaining the delicate equilibrium necessary for democratic governance. Stop. In the realm of adjudication, the concept of evidentiary burden assumes significant relevance. Stop. The burden of proof often shifts during the course of proceedings, depending upon presumptions, statutory mandates, or judicial interpretation. Stop. Courts, while determining the evidentiary burden, exercise great care so as not to deprive any party of a fair trial. Stop. The administration of justice, therefore, requires that evidence be assessed with impartiality, applying the settled principles of law. Stop. Furthermore, the judicial system is structured in accordance with hierarchical jurisdiction. Stop. The High Courts exercise supervisory authority over subordinate courts within their territorial limits, while the Supreme Court stands at the apex as the final arbiter of law. Stop. This hierarchy ensures consistency, promotes uniformity in legal interpretation, and prevents miscarriage of justice by allowing appeals and revisions. Stop. In conclusion, the harmonious interplay between fundamental rights and duties, the independence of the judiciary, the proper allocation of evidentiary burden, the recognition of limits of extraterritoriality, and the enforcement of hierarchical jurisdiction together uphold the rule of law and secure the constitutional supremacy envisaged by the framers. Stop. End of dictation. आई होप आपको ये डिक्टेशन अच्छी लगी होगी। इस डिक्टेशन की स्पीड एग्जैक्टली 70 वर्ड्स पर मिनट था। एक जनरल मैटर डिक्टेशन था, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें इंक्लूड थे। तो जो भी हमारे बोल्ड वर्ड्स हैं इन डिक्टेशंस के, उनकी आउटलाइन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। हमारी जो आज की लास्ट डिक्टेशन है उसके बाद, और उसके साथ साथ आपको कुछ नए लीगल वर्ड्स को सीखने का बहुत मौका मिलेगा। वो हमारे नए लीगल वर्ड्स होंगे। आज मैं शेयर करूंगा उनकी स्पेलिंग, 5 ऐसे लीगल वर्ड्स जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे।
I hope you are ready to write down the fourth dictation for today. जो हमारी चारवीं डिक्टेशन है वो 402 ऑफ वर्ड्स का होगा। एक लीगल मैटर डिक्टेशन है। इसमें एक वर्ड है इन एज मच, यू हैव टू राइट इट टुगेदर। इसमें कोई स्पेसिंग नहीं रखना है और इसमें कुछ न्यूमेरिक का इस्तेमाल हुआ है, तो इसका आप खास ख्याल रखिएगा। एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है, डिजिग्नेटेड अथॉरिटी का इस्तेमाल हुआ है, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इसमें बहुत सारे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, तो ये डिक्टेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इस डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 80 वर्ड्स पर मिनट। Get yourself ready for the dictation. The dictation starts in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Start. The petitioner has approached this court seeking the relief of anticipatory bail, apprehending arrest in connection with FIR number 20 of 2025 registered at police station Lal Chowk. Stop. The principal contention raised is that the allegations leveled do not disclose any prima facie offence of such gravity as would warrant custodial interrogation. Stop. Learned counsel for the petitioner submitted that the denial of such relief would expose the petitioner to grave collateral consequences, not only in respect of his liberty but also in his service career, where even a temporary detention might adversely affect his reputation and livelihood. Stop. On the other hand, the learned public prosecutor contends that the grant of anticipatory bail is an extraordinary remedy and that the court must exercise circumspection, bearing in mind the scope of administrative discretion vested in the investigating agency. Stop. The contention is that premature interference at this stage would hamper fair investigation. Stop. This court is conscious of the principle that bail, including anticipatory bail, is not to be denied merely as a matter of punishment before trial. Stop. The jurisprudence surrounding this relief, as reflected in judicial precedents, demonstrates that codification of criminal procedure, though detailed, still leaves ample scope for judicial interpretation, ensuring that liberty is not sacrificed at the altar of unbridled executive action. Stop. The issue raised also touches upon concurrent jurisdiction, in as much as both the Court of Session and the High Court are empowered under Section 438 of the Code of Criminal Procedure to entertain applications for anticipatory bail. Stop. The petitioner, in the present instance, has directly invoked the jurisdiction of this court on the plea that no efficacious relief could be effected from the subordinate forum. Stop. It is settled law that all acts of the state, whether executive or legislative, must bow to the doctrine of constitutional supremacy. Stop. Liberty, being a fundamental right guaranteed under Article 21, cannot be curtailed save in accordance with fair, just, and reasonable procedure established by law. Stop.
having regard to the facts and circumstances of the case, and balancing the need for a free investigation with the right of the petitioner to safeguard his liberty, this court is of the considered view that a case is made out for grant of anticipatory bail, subject to conditions, stop. Accordingly, the petition is allowed, stop. The petitioner shall be released on bail in the event of arrest, on furnishing personal bond and surety to the satisfaction of the investigating officer, stop. Order accordingly. End of dictation. आई होप ये डिक्टेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस डिक्टेशन में एक जगह पे मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आई है, वो एक्चुअली है एक्सपेक्टेड, ठीक है, मैंने उसको कुछ और ही पढ़ा है, दरअसल वो एक्सपेक्टेड है। और एक वर्ड यहाँ पे था इफिकैशियस। इफिकैशियस की स्पेलिंग मैं आपको बता दूं पहले ही, इसकी स्पेलिंग है EFFICACIOUS, इफिकैशियस, ठीक है। इसको ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे आप ऐसे ही लिख देना। तो ठीक है, जो आज के हमारे डिक्टेशंस हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब आपको मैं इन डिक्टेशंस का जो हमने जो ये बोल्ड करके वर्ड्स रखे हैं, एक कुछ टफ वर्ड्स हैं, उनकी आउटलाइन आपसे मैं आज शेयर करूंगा इसी में, ठीक है। हमारी डिक्टेशन में पहला जो वर्ड था वो था बिफोर दिस कोर्ट। ये आपको एक साथ ही लिखना है, बिफोर दिस कोर्ट। फिर था हमारा लर्न सेशन जज। लर्न सेशन जज में आपने एल डाल दिया है लर्न के बजाय, सेशंस जज में आपने सेशंस लिखा और जज को इंटरसेक्ट करके अलग लिख दिया। फिर हमारा रिगोर्स इम्प्रिजनमेंट है। रिगोर्स इम्प्रिजनमेंट आपने एक साथ ही लिखना है अक्रॉस द लाइन करके। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में आपने सिर्फ एनटी लिखना है, ठीक है, इसमें एमेंट को फॉलो कर देना। आप चाहे तो अलग भी इम्प्रिजनमेंट लिख सकते हो। फॉर अ टर्म आपने एक साथ ही लिखना है, फॉर अ टर्म इसमें स्किप कर देना है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये भी आपने एक साथ ही लिखना है, प्रिवेंशन फुल लिखा, फिर करप्शन इसके साथ एंड एक्ट अलग लिखना है। फिर हमारा काउंसिल फॉर द अपीलेंट। काउंसिल फॉर द अपीलेंट में हमने करना है के लिखना है अबुदलैंड, फिर आपने डायरेक्ट अपीलेंट लिखना है, ठीक है, फॉर द इसमें स्किप कर देना है। उसके बाद हमारा एसीलेट था। एसीलेट में आपने एल अगर एल डी का फुल का इस्तेमाल करोगे तो आपने एल और डी को फुल लिखना है, अदरवाइज आप चाहे तो एल को फॉलो करके डी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने दोनों फॉर्म्स यहाँ पे लिखे हैं, आपको जो अच्छे लगे वो फॉलो करो। फिर हमारा जजमेंट था। जजमेंट में आपने सिंपली लिखना है, ऑन द ग्राउंड आप एक साथ लिख सकते हो ऐसे। देन वी हैड प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन में आपने पीआर लिखा ऑन द लाइन, फिर एस और क्यूशन लिखा, ठीक है, उसमें अपने यू को प्लेसमेंट कर देना है। फिर हमारा एविडेंशियरी बेनिफिट बर्डन था। एविडेंशियरी बर्डन में आपने क्या करना है, एवीडी को फॉलो करके फिर एन फुल लिखना है, फिर शो एंड आर एविडेंशियरी बर्डन फुल लिखना है। देन वी हैड मटेरियल विटनेसेस। मटेरियल विटनेसेस में आपने मटेरियल को डबलिंग प्रिंसिपल करके फिर एल लिखा और विटनेसेस आपने उसके साथ ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ था टर्नड होस्टाइल। टर्नड होस्टाइल में अपने टी को कर दिया इस्तेमाल, फिर अपने आर एन डी को फॉलो कर देना है, होस्टाइल फुल लिखना है। होस्टाइल के मैंने दो तरीके बताए हैं, आपको जो ठीक लगे वो फॉलो करो। फिर हमारा एप्रिसिएशन एविडेंस था, ठीक है, इसमें अपने एप्रिसिएशन को लिखना है, ए पी आर लिखा, फिर शो और शन हुक इसी में डाल दिया, फिर एविडेंस में अपने वी को फॉलो कर देना है, डी डालना है इसमें, फिर एन एस लिखना है फुल। उसके बाद हमारा मिसकरेज ऑफ जस्टिस है। मिसकरेज ऑफ जस्टिस में अपने एम एस का इस्तेमाल कर दिया ऑन द लाइन, फिर क लिखा, फिर आर, फिर जस्टिस के साथ अपने जे जे को एस टी लूप डाल देना है, ठीक है, मिसकरेज ऑफ जस्टिस। फिर हमारा लर्न काउंसिल लर्न गवर्नमेंट एडवोकेट है। लर्न गवर्नमेंट एडवोकेट में आपने करना है एल स्ट्रोक को इस्तेमाल किया, फिर के स्ट्रोक एंड एडवोकेट उसके साथ ही आपने प्लेस कर दिया। देन वी हैड हैविंग हर्ड। हैविंग हर्ड में आपने हैव का फुल लिखना है वी हुक वी स्ट्रोक एंड एन जी, फिर हर्ड में आपने टिक एच और आर डी को फॉलो कर देना है। फिर हमारा बोथ साइड्स है, ये आपने एक साथ लिखना है। इमेजिनेशन भी फुल लिखा है यहाँ पे। साइंटिस्ट में आपने एस लिखा अबुद लाइन, फिर एन को एस टी लूप डाल के फिर एडिशनल एस डाल दिया, ठीक है। एम्बिशियस प्लान्स। एम्बिशियस प्लान्स में आपने एम को बी डाल दिया इसी में थिक करके, एम्बिशियस आपने अबुद लाइन। आप चाहे तो इसमें जो शो है अपवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप चाहे तो इसका डाउनवर्ड शो भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लान्स फुल लिखना है। साइंटिफिक अचीवमेंट आपने एक साथ लिखा है, साइंटिफिक फुल लिखा, अचीवमेंट में आपने च और वी एन टी का इस्तेमाल कर दिया है। फिर हमने लिखा है यहाँ पे ह्यूमन क्यूरियोसिटी। ह्यूमन क्यूरियोसिटी में आपने ह्यूमन के बदले में एच
का टी इस्तेमाल कर दिया, फिर एम लिखा, और ह्यूमंस क्यूरियोसिटी में आपने के आर इसी में डाल के फिर एस एंड टी का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। देन वी हैड डिसास्टर मैनेजमेंट आपने डी को लिखा, फिर सस्टर लिखा, मैनेजमेंट में आपने सिर्फ एम का इस्तेमाल कर देना है। फिर हमारा मिलिट्राइजेशन है, मिलिट्राइजेशन में आपने क्या करना है, या एम आपको अक्रॉस द लाइन लिखना है, फिर एल को डबलिंग को करके फिर सीजेशंस लिखना है, ठीक है। अ, या आप चाहे एम को लिखेंगे फिर एल फिर टी आर अलग लिखेंगे फिर जेशंस अलग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा एंटिसिपेटरी बेल है, एंटिसिपेटरी बेल में आपने ए एन टी को हॉलो कर दिया, फिर एस सर्कल डाला, फिर पी को डबलिंग कर दिया, बेल आपने अलग अलग लिखना है। इन कंडीशन आपने एक साथ ही लिखना है ऑन द लाइन। उसके बाद पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में पी एल एस कर दिया, फिर स्टेशन में आपने एस स्टेशन इसी तरह लिखना है, ठीक है, पुलिस स्टेशन। और उसके बाद एलिगेशंस लेवर्ड है, एलिगेशन लेवर्ड में आपने डाउनवर्ड का एल इस्तेमाल कर दिया, फिर गेशंस लिखा, लेवर्ड में आपने एल इस्तेमाल कर दिया, फिर वी एल डी को फॉलो कर दिया। प्राइमा फेशिया आपने एक साथ लिखना है। फिर हमारा वेरेंट है, वेरेंट में आपने एन टी को फॉलो कर देना है, बाकी डब्ल्यू फुल लिखना है। कस्टोडियल इंटरोगेशन में आपने फुल एक साथ लिखना है, कस्टोडियल फुल लिखा, फिर इंटरोगेशन में आपने एन को टी हुक डाल दिया, टी हालो करके फिर ग्रेशन फुल लिखना है। लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर, यहाँ पे लिखा है पेटिशनर, लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर इजियर है, ठीक है। इसको एक साथ ही लिखना है, अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देन वी हैड कोलेटरल कॉन्सिक्वेंसेस, कोलेटरल कॉन्सिक्वेंसेस में भी आप हॉलो इस पे ये शॉर्ट कर सकते हो। कोलेटरल लिखा, कोलेटरल में अपने डबलिंग के एल का इस्तेमाल कर देना है, डबल प्रिंसिपल। उसके बाद हमने इसमें डाउनवर्ड एल का इस्तेमाल किया, फिर कॉन्सिक्वेंसेस इसी के साथ ऐड करना है। टेम्पररी डिटेंशन ये भी आपने एक साथ लिखना है, इससे आपको बहुत टाइम बचेगा। ऑन द अदर हैंड एक साथ ही लिखना है और एक साथ ही आ जाता है डिक्टेशन में, तो आप इसको ऐसे ही एडवांस्ड आउटलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लर्न पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक डिजिग्नेटरी अथॉरिटी है, इसको अपने कैपिटलाइज में लिखना है। कोर्ट में एक अथॉरिटी होती है। लर्न के बदले में एल लिखा, पब्लिक पी लिखा, फिर प्रोसिक्यूटर इसके साथ एफ पी आर लिखा, फिर एस सर्कल, फिर क्यूटर आपने डबलिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारा 38 पेज जो था नंबर है वो था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुल लिखना है, सरकमस्पेक्शन है, ठीक है। इसमें आपने एम को हॉलो ये स्किप कर देना है, फिर पैक्शन ही लिखना है खाली, ठीक है। बेयरिंग इन माइंड आपने एक साथ लिखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन ये भी आपने एक साथ ही लिखना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये भी आपने लिखना है, इन्वेस्टिगेटिंग फुल लिखा, फिर एजेंसी के बाद में आपने जे का इस्तेमाल कर दिया है। फिर हमारा प्रीमेच्योर इंटरफेरेंस है, यहाँ पे लिखा है प्रीमेच्योर, पी आर का पी आर लिख के फिर मेच्योर के लिए आपने एम को डबलिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल कर देना है, फिर इंटरफेरेंस आपने फुल लिखना है, ठीक है। एट दिस स्टेज आपको दो जगहों पे बताया है कैसे लिखना है, जो आपको ठीक लगे वो फॉलो करो। जूरिस्प्रूडेंस अपने फुल लिखना है। सराउंडिंग में आपने सराउंड लिखा, हॉलवुड, उसके बाद इंक में आपने डॉट का इस्तेमाल कर दिया, जैसे मैंने लास्ट पे किया इसमें। कोडिफिकेशन में आपने केडी को हॉलो कर दिया, फिर फिकेशन फुल लिखना है, अबोव द लाइन, ठीक है। अनब्रिडलेड में आपने एन का इस्तेमाल कर दिया, अन यानी कि प्रोसीड्यूर वर्बल डाल दिया, फिर ब्रिडलेड में आपने बी आर को हॉलो कर दिया, डी डाल के फिर एल डी को भी हॉलो कर दिया ब्रिडलेड। कनकरेंट में आपने कॉन के बदले में डॉट लिखा, फिर करंट आपने फुल लिखना, आर एन टी को उसमें हॉलो कर देना है। फिर हमारा जुरिस्डिक्शन है, ये फुल लिखना है। इन एज मच एक ये फ्रेज है, लीगल फ्रेज, इसमें आपने एक साथ ही लिखना है, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशंस आप देखिए तो यहाँ पे मैंने दो तरीके बताए हैं, जो आपको ठीक लगे वो फॉलो करो। कोर्ट में आपको सी आर का इस्तेमाल कर देना है, ऑफ छोड़ के, फिर सेशंस में आपने फुल लिखना है सेशंस, या आप चाहे तो इसको एक साथ लिख सकते हो या इंटरसेक्ट करके लिख सकते हो। फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट आपको पता है कैसे लिखना है, यहाँ पे दिखाया है, आप उसको फॉलो करिए। फिर हमारा इफिकेशियस था, इफिकेशियस में आपने फुल का इस्तेमाल कर देना है, एफ के शो और एस हुक एस सर्कल का इस्तेमाल कर देना है। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी यहाँ पे लिखा है, अलग अलग करके ये लिखना है, ठीक है। दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू, ये इतना बड़ा वर्ड, इतने बड़े वर्ड्स हैं, एक फ्रेज बन जाती है, कोर्ट लीगल फ्रेज है, इसको एक साथ ही लिखना है। यहाँ पे सीखिए कैसे। दिस लिखा, ऑन द लाइन टीएच का इस्तेमाल कर दिया, फिर एस बना दिया, और कर्ड उसी के साथ कोड बनाया हो गया, दिस कोड इज ऑफ छोड़ देना है, द भी छोड़ देना है। फिर कंसिडर्ड में आपने एस और आर का डी लिखा, कंसिडर्ड व्यू में आपने सिर्फ यू को प्लेसमेंट कर देना है, ठीक है। दिस कोड इज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू। फिर हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये आपने फुल लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी आपने फुल लिखना है, फ्रेमवर्क में फ्रेम बना दिया, फिर वर्क आपने लाइन के बीच नीचे आपने छोटा सा ये, जिस तरह हम व्हाट लिखते हैं आपको नीचे लिखना है, ये फ्रेमवर्क होता है। इंडिया में अपने एनटी का फॉलो कर देना है। आर्बिट्रेरी आप ये ऐसे लिख सकते हो, ये लिखा है, फॉलो कर दीजिए। जुडिशरी रिलेशनशिप में आपने जुडिशरी लिखा, फिर एल को डाउनवर्ड डाउन फॉर्म किया इस्तेमाल, फिर शन इसके साथ ही
फिर शिप इसमें पी का इस्तेमाल कर देना, ठीक है, रिलेशनशिप। फिर जुडिशरी फंक्शन में भी आपने एक साथ ही लिखना है, इसमें भी ओमिट कर दिया जाता है। लेजिस्लेटिव आप इस दो तरीकों से बताया है, जो आपको फॉलो ठीक लगे वो फॉलो करो। एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस आपने एक साथ ही लिखना है, एग्जीक्यूटिव एक्सेस को ऑन द लाइन, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू में आपने जुडिशियल लिखा, रिव्यू में आपने वी एंड यू को प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर हमारा इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे लिखा है, फॉलो कर दीजिए। फिर हमारा प्रेजेंटेशन से है, यही लिखा है प्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपने जी गवर्नेंस को जीएनएस डाल दिया है, क्रिटिक कर देना है हॉलो। स्टैट्यूटरी मैंडेट अपने फुल लिखना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये भी आपने एक साथ ही लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। इम्पार्शियलिटी में आपने शेल को अपवर्ड इस्तेमाल कर देना है, अपवर्ड फॉर्म। हायरार्किकल जुरिस्डिक्शन ये आपने एक साथ ही लिखना है, इसमें अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हार्मोनियस ये भी आपने एक साथ लिखना है, बट रिमेंबर इसमें जो आपको लास्ट पे ट्राइफोन की इंडिकेशन जरूरी कर देनी है। फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल लिखा एफएनडी, और मेंट लिखा, फिर एल लिखा, और ड्यूटीज में आपने इसी तरह नीचे लिखना है, ठीक है। राइट्स इसी में साथ आता है, टी और डी इसी के साथ, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी यहाँ पे लिखा है दो तरीकों से, आपको जो ठीक लगे वो फॉलो करो, ठीक है। एक्सपीरियंसड यहाँ पे लिखा है फुल। वाटर लॉगिंग भी आपको दो तरीकों से बताया है, जो ठीक लगे वो फॉलो करो। स्टैंड स्टिल भी आपने ऐसे लिखना है, कोमिटर्स में आपको एम टी करके फिर आर एस सर्कल डाल देना है, कॉम के बदले में डॉट, या आप चाहे तो एम को डबलिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें फिर आपको वोवेल प्लेसमेंट जरूरी करनी है। स्ट्रैंडेड व्हीकल्स ये आपने हॉलवुड का इस्तेमाल कर देना है, व्हीकल्स में आपने के एल का लिखना है, और एच के बदले में इसमें ये टिक एच डाल देना है बीच में, लेकिन ठीक है। ओवर क्राउडिंग आपने एक साथ लिखना है, के आर डी को हॉलो करके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलग अलग लिखना है। म्युनिसिपल अथॉरिटीज में अपनी म्युनिसिपल लिखा है, अथॉरिटीज में अपने टीएच का इस्तेमाल कर देना है। इमरजेंसी फुल लिखना है। एक्यूमुलेटेड वाटर ये भी फुल लिखना है। प्रोलॉन्ग में अपने एनडी को फॉलो कर देना है, गो एंगडी, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आपने पॉलिटिकल लिखा, डेवलपमेंट में डी डाल दिया। अपोजिशन आपने अपोजिशन लिखना है। पार्लियामेंट फुल लिखना है, दो तरीके बताए हैं, जो अच्छे लगे वो फॉलो करो। एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल फुल लिखा, कमोडिटीज में अपने डिटीज लिखना है, कॉम को इंटरसेक्टिंग करके। फिर हमारा इंटरवेंशन है, डबलिंग एन को डबलिंग करके वेंशन लिखना है। फाइनेंस मिनिस्टर में अपने एनिस्टर लिखना है, फाइनेंस करके, या आप एफ और एनिस्टर लिख सकते हो अलग, ठीक है। अवेलेबिलिटी में अवेल बना दिया, फिर बिलिटी में बी डाल दिया, इंटरसेक्शन करके। इन्फ्लेशनरी है ये आपने यहाँ पे मैंने दो तरीके बताया, या आप इस तरह लिख सकते हो, उसमें लास्ट में डॉट कर देना है, फिर आपको इससे पता चलेगा कि नरी इसमें साउंड आता है, या आप चाहे तो इसको फुल भी लिख सकते हो आप वो डाल करके। टाइमली, पॉलिसी में टाइमली लिखा, पॉलिसी में पी डाल दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपने एक साथ लिखना है, कल्चर का इस्तेमाल कर देना। इंडिजीनियस लिटरेचर एनडी को फॉलो करके जीनियस लिखना है, लिटरेचर आपने फुल लिखना है, ठीक है। रैपिड मॉडर्नाइजेशन इसमें भी हॉलवुड इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल में भी आपने इस तरह लिखना है। चेयरमैनशिप आपने ऐसे लिखना है। सपोर्टर्स में आपको टर्स का साउंड निकलता है, सपोर्ट लिखा, फिर आर को डबलिंग करके ग्रास रूट्स आपने फुल लिखना है, ठीक है। तो ये थे आज के आउटलाइंस इंडिकेशंस का। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे आज के कुछ लीगल वर्ड्स होंगे जो आपने अभी शायद मेरी हिसाब से नहीं सुने होंगे, या आपके लिए वो फ्रूटफुल होंगे, उनकी मैं आपको स्पेलिंग यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन उनकी आउटलाइन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो हमारा आज का पहला लीगल वर्ड है वो है रेस, आर ई एस, सुबह लिखना है। नीलियस, एन यू एल एल आई यू एस, ठीक है। ये हमारा पहला वर्ड है, इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे, रेस नीलियस। हमारा दूसरा जो वर्ड है वो है रि, आर ई पी यू जी, रिपगनेंसी, एन ए एन सी वाई, रिपगनेंसी। डॉक्ट्राइन, डी ओ सी टी आर आई एन ई, ठीक है। रिपगनेंसी डॉक्ट्राइन ये हमारा दूसरा लीगल वर्ड है, इसको भी आप अलग तरीके से नोट डाउन करके रखो, ठीक है। इनकी आउटलाइंस आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आज का जो तीसरा वर्ड हमारा है लीगल सीक्रेट वर्ड वो है रोग, आर ओ जी, स्पेलिंग सुनिए क्या है, आर ओ जी यू ई, रोग एंड वेगाबॉन्ड, ठीक है, वी ई जी ए बी ओ एन डी, वेगाबॉन्ड। जो आज का फोर्थ लीगल वर्ड है वो है सर पल्सेज, स्पेलिंग रहेगी एस यू आर पी एल यू एस ए जी ई, सरपल्सेज, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एस यू आर पी एल यू एस ए जी ई, सरपल्सेज, ये हमारा
फोर्थ लीगल वर्ड है, इसको भी नोट डाउन करके रखो। जो आज का लास्ट लीगल वर्ड है 5 नंबर पे, वो है हमारा टॉट, TORT, टॉट, FEASOR, टॉट फिशर। ठीक है, ये हमारा लास्ट है टॉट फिशर, TORT FEASOR, टॉट फिशर। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड्स। इनके आउटलाइन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आई होप दिस वीडियो इज फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, और इन डिक्टेशंस को आप जरूरी तौर पे ट्रांसक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई सवाल होगा, वो आप मुझे टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हो। किसी चीज की आउटलाइन बनानी होगी, आप वहां से मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे होपफुली जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो मीनवाइल जब से ये इंटरनेट का मसला हमें जल्दी रिसॉल्व हो जाएगा कश्मीर में, उसके बाद हम आपको लाइव क्लासेस फिर से जो दे देंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।